प्रभुଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ आज यहाँ पर ଅଛନ୍ତି। कितने लोग हैं जो कहेंगे कि मैं यीशु से आज मुलाकात करने आया हूँ। ଆଜି ଏଠାରେ ବସିଥିବା କେତେ ଲୋକ ଏହା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। शायद जो कुर्सियाँ कुछ पीछे खाली होगी, साइड में खाली होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ହୋଇପାରେ ପଛରେ କେତେଟା ଚେୟାର କିମ୍ବା ଆଗ ପାଖରେ କେତେଟା ଚେୟାର ଖାଲି ଥିବ, କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। उसका नाम यीशु मसीह है। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟେ। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आज यहाँ पर उपस्थित है? କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ अगर यीशु ଅଛନ୍ତି। मसीह आज रात यहाँ पर उपस्थित है ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ तो आप उसे आज मिलकर जाना, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। आप उसे अनुभव कर जाना, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। आप उससे सुनकर जाना है, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ। आप उसके सामर्थ्य को अनुभव कर जाना है। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। मेरी प्रार्थना है आज रात वो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे। ଆଉ हालेलुया। ମୁଁ ଏହା କାମନା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। लेकिन आपके अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। अगर हमारे पास हमारे अंदर एक उम्मीद है, मुझे यीशु मसीह को मिलना है, उसकी सामर्थ को मुझे अनुभव करना है, आज रात वो आपको ऐसे ही नहीं भेजेगा। आज रात आप उसकी सामर्थ को अनुभव करेंगे। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେବେ। बाइबल बताती है वे लोग इंतजार कर रहे थे। They were waiting for Jesus Christ. ଆଉ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। वो यीशु का इंतजार कर रहे थे। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। आज रात कितने लोग हैं यहाँ पर यीशु का इंतजार करने वाले? ଆଜି ରାତ୍ରରେ କେତେ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର। मुझे उसकी आवाज को सुनना है, ତାଙ୍କର ଆୱାଜକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, मुझे उसकी सामर्थ को अनुभव करना है। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। अगर आज रात आप भी एक उम्मीद के साथ बैठे हैं, वो आपको ऐसे ही वापस नहीं भेजेगा। ଯଦି ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। यीशु के साथ हमारी मुलाकात हमारे जीवन को बदल कर रख देगी। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। हो सकता है शायद आप निराशा के साथ आए होंगे, ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ନିରାଶାର ସହିତ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। शायद आप बीमारी के साथ आए होंगे, ହୋଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନେ ବିମାର ସହିତ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। शायद आप कोई समस्या के साथ आए होंगे। ହୋଇଥାଇପାରେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। लेकिन अगर आज आप उसका इंतजार कर रहे हैं, वो यीशु मसीह आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, आपके दुख को चंगाई में बदल देगा, आपको आशीष देकर भेजेगा। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିରାଶକୁ ଆଶାରେ ବଦଳାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରି ପଠାଇବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। यीशु का इंतजार करने वाले लोग आज रात उसकी महिमा को देखने वाले हैं। हालेलुया। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖିବେ। आज रात उसकी मुझे महिमा को देखना है। ଆଉ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖିବି, ଏହି କାମନା କରିବା। आज रात मुझे उसके काम को देखना है। ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। तो आप ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे, आप उसके महिमा को देखकर जाएंगे। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ମନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖିବେ। यीशु का इंतजार करने वाले लोग, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ, यीशु मसीह का इंतजार वेट करने वाले लोग, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। भाई अगर आज रात आपके पास बाइबल है, वो अपनी बाइबल को खोले। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की ओर चलेंगे। ଆମମାନେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ। जब आप उसके 6वें अध्याय को पढ़ते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କରିବେ, 6वां अध्याय एक अद्भुत अध्याय है। ଆଉ ଏଇ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। बाइबल बताती है ऐसे यीशु मसीह के नगर के बारे में हम पढ़ते हैं। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନଗର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। यीशु मसीह के नगर नासरत के बारे में हम पढ़ते ଆଉ हैं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନଗର ନାଜରିତ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। बाइबल बताती है वो अपने नगर में गया, लेकिन बहुत सारे अद्भुत काम कर नहीं पाया।
बाइबल कहे प्रभु यीशु तांकर निज नगर को गले किंतु से जगह रे अनेक चमत्कार करि पारले नाही, क्योंकि वहां पर अंधविश्वास अविश्वास करने वाले लोग थे। कारण सेई जगह रे अंधविश्वास किबा अविश्वास करुवा लोक माने थिले। आज भी बहुत सारे शहर है जहां पर विश्वास नहीं लोग करते हैं। आज मध्य अनेक सहर अछि जे जगह रे लोक माने विश्वास करंती नाही। आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर विश्वास नहीं करते हैं। आज भी अनेक ग्राम अछि जे जगह रे लोक माने विश्वास करंती नाही। आज भी बहुत सारे घर हैं जहां यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। आज भी एमिति अनेक घर अछि जे लोक माने प्रभु यीशु को ग्रहण करंती नाही। यीशु मसीह अपने घर में आया है, अपने शहर में आया है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके। प्रभु यीशु निज शहर रे निज ग्राम रे आसी अछंती किंतु तांकर निजस्व लोक माने तांको विश्वास करू नाहंती। बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पर बहुत सारे चमत्कार नहीं कर पाया। बाइबल कहूछि कि प्रभु यीशु सही नगर रे अनेक चमत्कार करि पारि नाहंती। वो हर जगह में चमत्कार करना चाहता है। से समस्त जगह रे चमत्कार करिबा को चाहंती। वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, से निजर गौरव को प्रकाश करिबा पय चाहंती। लेकिन उसे अपने शहर के लोग उस सामर्थ को अनुभव नहीं कर पाए। किंतु तांकर निज शहर रे लोक तांकर से शक्ति को अनुभव करि पारले नाही। उसका कारण क्या था? तांकर सही कारण कोन थिला? उसका कारण ये था क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। लिखा है वहां पर अविश्वास बहुत प्रबल था। आउ कारण एहा थिला कि सही जगह रे लोक माने विश्वास कले नाही, अविश्वास रो प्रभाव बेसी थिला। वहां पर अविश्वास होने के कारण परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट नहीं कर पाया। सही जगह रे अविश्वास रहितबा हेतुरु प्रभु यीशु से जगह रे अनेक चमत्कार करि पारि नाहंती। ये परमेश्वर के काम को प्रभु आज भी बड़े-बड़े काम करना चाहता है। परमेश्वर को कार्य को प्रकाश करिबा पाई प्रभु यीशु आज मध्य बड़ बड़ चमत्कार करिबा को चाहंती। वो आज भी मुर्दों को जिंदा करना चाहता है। से आज भी मृत्युमान को जीवित करिबा को चाहंती। वो चाहता है अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलाए, वो आज भी करना चाहता है। आउ से आज मध्य अंध को चक्षु देबा पाई छोटा मान को चलाइबा पाई चाहंती। बाइबल बताती है वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। बाइबल कहे से काली आज चिरकाल समान अटंती। लेकिन उस समय में अविश्वास उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए रुकावट था। आज भी अविश्वास उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए रुकावट का कारण है। किंतु सेई दिन मान करे जे अविश्वास थिला सेटा प्रभु यीशुंकर गौरव को प्रकाश करिबा पाई गोटे बाधार कारण होतिला। आज मध्य सही प्रकार बाधार कारण हेउछि। आज मेरे सुनने वाले मेरे भाई मेरे बहन, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आज की रात मेरी रात है। आज प्रभु मुझे आशीष देने जा रहा है। आज जेते लोक मते सुनुछंती प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण मानिक पाखरे गोटे विश्वास हेबा दरकार जे प्रभु आज रात्र में मते कथा कहिबे। अगर आप विश्वास के साथ आए हैं प्रभु आपके लिए बड़े-बड़े काम आज रात्रि करेगा। जदि आपण माने विश्वास रो सहित आसी अछंती प्रभु बड़ बड़ कार्य आपण मानिक जीवन रे करिबे। हालेलुया हालेलुया। उसके 6वें अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। ता 6 अध्याय रे जेते आपण आगो को देखिबा बाइबल बताती है वो दो-दो कर अपने चेलों को भेजता है। आ बाइबल कहे से दुई जन करी से लोक मान को शिष्य मान को पठाउछंती और वो जाकर प्रभु की महिमा को प्रकट कर वापस आते हैं। आ से माने स्थान स्थान रे प्रभुकर गौरव प्रकाश करी फेरी आसुछंती। बाइबल बताती है उन्होंने बाहर जाकर लोगों को पश्चाताप करने का उन्होंने प्रचार किया, चंगाई दी, लोग चंगे हुए और वो वापस आकर यीशु को बताते हैं। आ बाइबल कहूची कि से माने जाई लोक मान को अनुताप प्रचार कले आ लोक माने अनुताप करी से माने सुस्थता को लाभ कले एही प्रकार कार्य करी से माने फेरी आसुछंती। बाइबल बताती है उन्होंने तेल लेकर लोगों के ऊपर लगाया, बीमार लोग चंगे हो गए। बाइबल कहूची से माने तैल नहीं लोक मान को ऊपर लगाइले से माने सुस्थता को पाइले। लेकिन उसी के बीच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। किंतु सेही मध्य रे आमाने बाप्तिजी को जोहनकर मृत्यु विषय रे मध्य आमाने देखुछु। एक तरफ लोग आशीषित हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। आउ गोटे पासपरे लोक माने आशीर्वाद प्राप्त होतिले किंतु अन्य पासपरे प्रभुकर दास बाप्तिजी को जोहनकर मृत्यु घटुछि। लेकिन बाइबल बताती है किंतु बाइबल कहे चेले लोग उसके पास आकर कहते हैं उन्होंने यीशु के नाम से क्या-क्या किया है। आउ शिष्य माने आसी कहउछंती कि प्रभु यीशु को नाम रे से माने कोन करिसंती। बाइबल बताती उनके पास खाने का भी समय नहीं था। बाइबल कहे से माने को पाकरे भोजन करिवार समय नथिला। उसके 6 अध्याय का 31 आयत में लिखा है चेलों के पास राम का भी समय नहीं था। आउ 6 अध्याय रे लिखा है कि प्रभु यीशु को शिष्य मानकर
ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା। और वहां पर एक बड़ी भीड़ यीशु के पास आती है। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। बाइबल बताती है वहां पर लगभग 5000 जो पुरुष है, स्त्रियां, बच्चे, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए ଆଉ हैं। ବାଇବଲ କହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ 5000 ଲୋକ କେବଳ ପୁରୁଷ ତତ୍ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି। लेकिन बाइबल बताती है କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ यीशु मसीह ने भोजन के द्वारा तृप्त कर कर भेजता है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ କରି ପଠାଉଛନ୍ତି। हालेलुया, यीशु मसीह में तृप्त करने वाला प्रभु है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। आज रात वो वचन के द्वारा हमें तृप्त करना चाहता है। ଆଜି ରାତ୍ରରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। आज रात अपने वचन के द्वारा हमें वो तृप्त करेगा। ଆଜି ରାତ୍ରରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। बाइबल बताती है एक बहुत बड़े चमत्कार के बाद ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ଗୋଟେ ବଡ ଚମତ୍କାର ହେଲା ପରେ और बहुत बड़े एक अद्भुत काम के बाद ଗୋଟେ ବଡ ଚମତ୍କାର ପରେ 5000 पुरुषों को खाना खिलाने के बाद 5000 ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲା ପରେ उसके 45 शायद में लिखा है 45 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି लिखा है वो उन्हें अपने चेलों को कहता है कि वो उनसे पहले बेतेल को चले जाए, बेतसैदा को चले जाए। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବେତସାଇଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। आप जब चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବେ चौथे अध्याय में इस प्रकार उसके 35वें पद में इस प्रकार लिखा है। 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି लिखा है एक दिन शाम को यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है आओ हम उस पार चले। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା। यीशु मसीह ने पहले भी अपने चेलों को इस प्रकार उनके साथ यात्रा की है। पानी में उन्होंने पहले भी प्रभु के साथ यात्रा में अनुभव किया है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। और वो यीशु के साथ कई बार यात्रा कर चुके हैं। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରି ସାରିଥିଲେ। लेकिन 6वें अध्याय में उनका अनुभव बिल्कुल अलग होने वाला था। କିନ୍ତୁ ଏଇ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। बाइबल बताती है ବାଇବଲ କହେ यीशु ने कहा वो दूसरी बार बेतसैदा को चले जाए। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆର ପାରିକୁ ବେତସାଇଦାକୁ ଯାଅ। और यीशु मसीह ने आज्ञा देता है वो वहां चले जाए। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। वो यीशु की आवाज सुनने के बाद यात्रा का आरंभ करते हैं। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। बाइबल बताती है ବାଇବଲ କହେ यीशु अपने चेलों को भेजने के बाद वो भीड़ को उन्हें वो भेजने लगता है। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ସେ ଗହଳିକୁ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି। और बाइबल बताती है उसके 46 पद में इस प्रकार लिखा है। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି 46 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ उनको भेजने के बाद सब लोगों को अलविदा करने के बाद लिखा है यीशु मसीह पर्वत पर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। उसके चेले लोग यात्रा में हैं। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। यीशु मसीह आज उनके साथ यात्रा में नहीं है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି। चौथे अध्याय में यीशु मसीह उनके साथ यात्रा में था। ଆଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। लेकिन 6वें अध्याय में यीशु मसीह आज उनके साथ वो यात्रा में नहीं है। କିନ୍ତୁ ଏଇ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି। लेकिन बाइबल बताती है କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ उन्होंने यीशु की आवाज सुनकर ये यात्रा बेतसैदा के लिए शुरू की है। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ବେତସାଇଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ। उन्होंने यीशु की आवाज सुनकर ये यात्रा आरंभ की थी। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ये प्लान उनका नहीं था। এই ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ये योजना उन्होंने नहीं बनाई ଆଉ थी। ଏଇ ଯୋଜନା ସେମାନେ ବନେଇ ନଥିଲେ। ये योजना यीशु मसीह की थी। ଏଇ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଥିଲା। ये प्लान यीशु मसीह का था। ଏଇ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଥିଲା। और यीशु मसीह वहां पर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। बाइबल बताती है ବାଇବଲ କହେ उसके 47 आयत में लिखा है। ଆଉ 47 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ उसके 47 आयत में इस प्रकार लिखा है 47 ପଦରେ
पदरे एमती लिखा जाए बोला जब शाम का समय हुआ है जेतेबेले संध्या हेबा समय रे और उनका ढोंगा बोला वो समुद्र के बीच में है आउ तांकर नौका से समुद्र मध्य रे अछि और बोला यीशु मसीह उस समय वो जमीन पर है वो अकेले प्रार्थना कर रहा था आउ से समय प्रभु यीशु एका पर्वत ऊपर से प्रार्थना करूछंती बाइबल बताती है बाइबल कहे यूहन्ना रचित सुसमाचार जहन लिखित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे यदि 6 अध्याय आपण माने पढ़िबे उसके 19 पद में लिखा है तार 19 पदरे लिखाई छी उन्होंने लगभग 3-4 मील की यात्रा उन्होंने कर ली है आउ से माने प्राय 3-4 मील दूर को यात्रा करि सारी छंती और लगभग 6-7 मील उन्होंने 6-7 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं आउ प्राय से माने 6-7 किलोमीटर दूर को जाई छंती उनके स्टार्टिंग में यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी आउ आरंभ रे से माने को यात्रा रे कोनोसी समस्या नथिला उन्होंने 1 मील यात्रा की कोई प्रॉब्लम नहीं थी से माने गोटे मील गला परे कोनोसी समस्या नथिला यूहन्ना 6:19 में लिखा उन्होंने 2 मील यात्रा की कोई प्रॉब्लम नहीं थी आउ जौन 6 अध्याय 19 पदरे लिखा जाई छी से माने 2 मील गला परे मध्ये कोनोसी समस्या नथिला लेकिन बाइबल बताती है वो 3-4 मील यात्रा कर अभी वो बीच में पहुंच चुके हैं किंतु बाइबल कहे से मान जेतेबेले 3 रु 4 मील पर्यंत यात्रा कले एबे समुद्र मध्य अछंती वो पीछे जा नहीं सकते और उन्हें आगे बढ़ना है क्योंकि मंजिल उनके सामने है से माने पछकु फेरी जाई पारिबे नाही किंतु से मान को आगो को बढ़िवार अछि ताकर लक्ष्य स्थल अछि दूरकु अब वो बीच में आ गए हैं एबे से माने मध्य स्थल रे अछंती बाइबल बताती है बाइबल कहे 3-4 मील की यात्रा के बाद आउ 3-4 मील रो यात्रा परे उसके 48 पद में लिखा है 48 पदरे लिखाई छी वहां पर लिखा है ये कदम उनके विरुद्ध में एक आंधी वहां पर आ गई है आउ बाइबल रे लिखाई छी प्रतिकूल वायु हेतु से मानकर नौका बाहिवारे कष्ट पाउथिबा 48 पदरे लिखाई छी हाँ 48 साइड को पढ़ी प्रतिकूल वायु हेतु सेमानंकु नौका बाहिबारे कष्ट पाउथिबा देखि से प्राय रात्रिर चतुर्थ प्रहर रे समुद्र ऊपर चाली सेमानंको पाखकु आसिले ध्यान से सुनिएगा 48 साइड में इस प्रकार लिखा है ध्यान सहित सुनंतु 48 पदरे लिखाई छी लिखा है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आंधी उनके विरुद्ध में है आउ सेमाने आगो को बढ़िबा पाई चेष्टा करूछंती किंतु वायु सेमानकर प्रतिकूल रे अछि के कुछ 2 महीने पहले मार्च में मुझे भी एक दिन डोंगा में यात्रा करने का समय मिला आउ 2 मास पूर्वे गोटे दिन मार्च मास रे नौका रे मते मते यात्रा करिवार सुयोग मिलिथिला मुझे रायगढ़ से नवरंगपुर वहां पर मीटिंग के लिए आना था आउ मते रायगढ़ रु नवरंगपुर मीटिंग पाई जिबार थिला नूतन पास्टर मुझे बाइक से वहां रायगढ़ से लेकर वो मुझे यहाँ पर लेकर आने वाला है आउ सेठाकर जने पास्टर आज्ञा बाइक रे मते नै कि जिबार थिला फटागुड़ा करके जगह में वो मुझे लेकर आने वाला है आउ गोटे फटागुड़ा बोली कि गोटे गां अछि सेही गां को मते नै कि जिबार थिला तो वहां फटागुड़ा आने के लिए रास्ते में आपको एक डोंगा क्रॉस करके आना पड़ता है आउ सेही फटागुड़ा जिबाकु हेले नौका देई कि जिबाकु पड़ी थाए और उस दिन लगभग हम लोग सुबह वहां से निकले 12 बजे वहां पर उस पानी के उस पार हम लोग खड़े इंतजार कर रहे थे आउ हम माने 12 घंटा समय रे बाहरी सेही नदी कूल रे माने ठिया आइथिलु और वहां पर उसके बाद कुछ समय के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं आउ किछि समय परे हमें से जगह रे पहुंचिलु और उसके बाद एक आवाज सुनाई देती है तापरे हमर को गोटे शब्द सुनिला मैंने नूतन पास्टर को पूछा क्या वो नाव हमारी तरफ आ रही है आउ मु सेही बालक आज्ञा को पचारिली कौन से नौका हमारे को आसुछि की उसने कहा नहीं ये हमारी तरफ नहीं ये सर दूसरी तरफ जा रही है से कहले नहीं आज्ञा एटा हमारे को आसु नहीं सेटा अन्य पास्टरे जाउछि आप जानते हैं फटागुड़ा के पास एक बहुत बड़ा डैम है आपण मन जानती सेही फटागुड़ा ग्राम पाखरे गोटे बहुत बड़ डैम अछि इंद्रावती डैम के वहां से पार होके आना है आउ से इंद्रावती डैम को पारी है कि आसीबार अछि इंद्रावती डैम का वहां से पार होकर आने के लिए केवल एक ही रास्ता है वो डोंगा में बैठ के आना है आउ सिटी पार हेबा पाई हेले केवल एकमात्र रास्ता सेटा हैला नौकार यात्रा और कुछ समय के बाद एक और आवाज आती है आउता परे परे आउ गोटे शब्द हमारे को सुभिला हमने देखा एक नाव हमारी तरफ आ रही है आउ हमें देखिलु कि गोटे नौका हमारे को आसुछि लगभग 2-2:30 बजे का समय है आउ सेटा 2 घंटा कि 2टा अधे समय रो कथा और वो नाव आने के बाद आउ सेही नौका आसिला परे वो किनारे पर आती है आउ सेटा कुलो को आसुछि उसके अंदर बाइक है
ଆଉ ସେଇ ନୌକା ଉପରେ ବାଇକ୍ ଅଛି, उसमें सब्जियां हैं, ଆଉ ସେଠି ପନିପରିବା ଅଛି, उसमें कुछ बिजनेस का सामान इधर से लेकर के वो भी है उसके ଆଉ अंदर। ସେଠି ବିଜନେସ କରିବାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। वो सारा उतारने के बाद उन्होंने पहले बाइक को उसके अंदर लगाना शुरू किया। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ବାଇକ୍ କୁ ସେ ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। वो 4 बाइक इस साइड में रखा है, 4 बाइक इस साइड में रखा है। ଆଉ ସେଇ ନୌକାରେ ସେ 4ଟି ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ 4ଟି ବାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଛି। और उसके बाद मैं नूतन पास से पूछ रहा हूँ अभी ये जाएगा क्या? ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ନୂତନ ପାଳକକୁ ପଚାରିଲି କି ଏ ନୌକା ଏବେ ଯିବ କି? हाँ बोला अभी जाएंगे। बोला जब थोड़े लोग और आने से फिर हम लोग जाएंगे। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯିବା। दूर से एक और बाइक आ रही है। बोला ये भी, इसको भी लेके जाना है। ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ। दूर से एक आंटी वो भी दौड़ दौड़ के आ रही। बोला उसको भी लेकर जाएगा। ଆଉ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବା କହିଲେ। आप पास नूतन को पूछ सकते हैं। ଆପଣମାନେ ପାଳକ ନୂତନ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। वो नवरंगपुर में ही उनका घर है। ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର। और उसके बाद हम अंदर वो बाइक रखने के बाद उनको बिठाया। फिर उसके बाद हमें भी उसने अंदर आने के लिए बोला। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଯାକକୁ ସେଠି ରଖିଲା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୌକାରେ ଚଢିବାକୁ କହିଲେ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा है ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି इसकी गहराई कितनी है? ଆଉ ଏ ପାଣିର ଗଭୀର କେତେ ଥିବ? बोला 60 से 100 फीट गहरा है। ଆଉ ସେ କହିଲେ 60ରୁ 100 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଗଭୀର ଅଛି। ये मेरे लिए पहला सफर था। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନୌକା ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ये लंबा एक सफर था, पहला सफर था। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମ ସମୟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पानी की, वो पानी भी दोनों तरफ से उछल रहा है। ଆଉ ଯେମିତି ଯେମିତି ସେ ନୌକା ବଢୁଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। वो एक बहुत अलग प्रकार का अनुभव था। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। सिर के ऊपर धूप पड़ रही है ଆଉ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଗରମ ଖରା ପଡୁଛି। और वो पानी, वो जो नाव है वो बीच बीच में, क्योंकि उसके बाइक ये इधर उधर बैलेंस है, लेकिन बीच में जब थोड़ा हिलने से तो मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती है, आज कुछ हो गया तो क्या होगा। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ ହଲାଝୁଲା ହେଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋର ଛାତିର ଧଡ଼କନ ବଢି ଯାଉଥିଲା, କଣ ହେବ ଆଗକୁ ବୋଲି। कम से कम 30 मिनट का वहां से वो यात्रा है। वो नाव में कम से कम 30 मिनट की यात्रा है। ଆଉ ସେଇ ନୌକାରେ ଆମେ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। मैं बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा हूँ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ୱାଚ୍ କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ये 30 मिनट कब होंगे? ଏ 30 ମିନିଟ୍ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ, कब 30 मिनट खत्म होंगे? କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେବ, कब मैं दूसरे किनारे की ओर पहुंचूंगा? କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର ପାରିକୁ ପହଞ୍ଚିବି। मैं उसको पूछ रहा हूँ पासनुद्दीन कितना समय और लगेगा? ମୁଁ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। बहुत जल्दी पहुंचेंगे हम, ସେ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର जल्दी ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, पहुंचेंगे हम। ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। आपको मैं बताऊं, जब किनारे पर पहुंचा मैंने हाथ उठा के प्रभु धन्यवाद, आज तो सेफली आ गया वहां पर। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର ପାରିକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ହାତ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। जब आप दोपहर गर्मी, उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ବହୁତ ଖରା ହଉଥିଲା। और ये मेरा पहला अनुभव है। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। आधा घंटा उसमें जाकर नाव में उसमें यात्रा करना है। ଆଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନୌକା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। तो जैसे ही थोड़ी सी नाव हिलती थी उस समय मेरा दिल कांपने लगता था। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୌକା ଟିକେ ହଲି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୀତ ହେଇଯାଉଥିଲି। लेकिन नूतन पास तो एकदम आराम से खुशी से वो वीडियो बना रहा है। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଆରାମରେ ବସିକି ସେ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରୁଥିଲେ। बोला हमारे लिए नॉर्मल बात है। ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। यहाँ पर आप बाइबल में पढ़ने वाला जो नाव के अंदर बैठा है, इसमें से कई लोग नाव में जाने आने वाले, उनके लिए कोई नया अनुभव नहीं था। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ନୌକା ବିଷୟରେ ପଢୁଅଛୁ, ସେଇ ନୌକାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଥା ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଥିବ। लेकिन उसमें लेवी भी है, क्योंकि वो नाव का काम उसने नहीं किया है। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲେବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେ କି ନୌକାର କାମ କେବେ କରିନାହିଁ। शिमोन पतरस के पास बहुत सारा अनुभव है। ଆଉ ସିମୋନ ପିତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନୌକାର। यूहन्ना के पास बहुत सारा अनुभव है। ଜହନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। याकूब के पास बहुत सारा अनुभव है। ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। उसे ऐसे कहे अनुभवी लोग उस दिन बोट के अंदर था, ଆଉ ସେଇ ନୌକାରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସିଥିଲେ। लेकिन उनका अनुभव काम
काम नहीं कर रहा କିନ୍ତୁ है। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବେ କାମ ଦେଉନାହିଁ। बाइबल बताती है ବାଇବଲ କହେ एक आंधी उनके विपरीत में है। ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସିଲା। हिंदी भाषा में लिखा है ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ये लोग चप्पू चला रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନୌକାର ଚାଟୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେଟା ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ। वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢୁନାହାନ୍ତି। उसमें अनुभवी लोग था लेकिन अनुभव काम नहीं आया। ସେମାନେ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। शायद उनके अनुभव से उन्होंने कुछ ट्राई किया होगा लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। इतना ही नहीं, ये रात का समय है, दिन का समय नहीं है। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଦିନ ସମୟ ନଥିଲା, ଏଇଟା ରାତ୍ରି ସମୟ ଥିଲା। वो कोशिश कर रहे हैं। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। बाइबल बताती है ବାଇବଲ କହେ वो कोशिश कर रहे हैं, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି चप्पू मार रहे हैं ଆଉ ସେମାନେ ନୌକାକୁ ନାବୁଛନ୍ତି लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही है। କିନ୍ତୁ ନୌକା ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ। लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही है। ନୌକା ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ। सुनिए, शायद आज आपकी जिंदगी का अनुभव ये हो सकता ଶୁଣନ୍ତୁ है। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ସେପରି ହେବ। शायद आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। परिस्थिति आपके विरुद्ध में है। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବ। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ आप ପାରୁନାହାନ୍ତି। उपवास कर रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ଆପଣମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। आप वहीं खड़े हुए हैं। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। आपने आपके दिमाग का काम किया लेकिन आप उससे भी आगे नहीं बढ़ पा ଆଉ रहे हैं। ଆପଣମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତଥାପି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। आपके अनुभव से आपने कोशिश किया लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତଥାପି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। शायद आपके पढ़ाई में होगा, ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, शायद आपके बिजनेस में होगा, ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେପାରରେ, शायद आपके परिवार में होगा। ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ। लेकिन सुनिएगा, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती ଆଉ है। ଏହି କାହାଣୀ ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। अंधेरी रात में आंधी उसके विरुद्ध में है। वे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे ଆଉ हैं। ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। उन्हें कोई देखने वाला है नहीं। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। लेकिन मेरी बाइबल बताती है, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଇବଲ କହେ, मेरी बाइबल बताती है, ବାଇବଲ କହେ ओ यीशु मसीह ने उन्हें देखा है, वे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। यीशु मसीह ने देखा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके समस्या के बारे में शायद कोई नहीं जानता होगा लेकिन मेरा यीशु मसीह जानता है। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି। क्योंकि वे यीशु की आवाज सुनकर निकले କାରଣ हैं। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରୋଗ ଶୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। अगर आप यीशु की आवाज सुनकर निकले हैं, आपकी यात्रा के बारे में उसको सब कुछ पता है। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରୋଗ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। आपके घर की अवस्था को वो जानता है। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। आपके बच्चों की अवस्था को वो जानता है। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। आपके शरीर की अवस्था को वो जानता है। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। आपके आत्मिक अनुभव को वो जानता है। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। बाइबल बताती है, ବାଇବଲ କହେ यीशु पृथ्वी पर, यीशु सूखी जमीन पर था ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସୁଖା ଭୂଇଁରେ ଥିଲେ। क्योंकि वो प्रार्थना करने गया था। କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। वहां से भी वो देख पा रहा था। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। अगर उस रात यीशु मसीह देख पा रहा था, आज भी वो स्वर्ग में बैठा हुआ आपकी अवस्था को जानता है। ଯଦି ସେଇ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। शायद कोई और आपको देखने वाला नहीं होगा ହୋଇପାରେ ଆଉ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିବେ लेकिन यीशु आपको देखता है। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। यीशु आपकी अवस्था को जानता है। मेरे भाई, मेरी बहन, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। एक आंख है जो आपको देखती है। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ଅଛି ଯୋଉ ଆଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। बाइबल बताती है, ବାଇବଲ କହେ उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती ଆଉ है। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀ
পৃথিবীরে নিরন্তর লাগি রহে वो आपको देखता है, সে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି वो रात के समय भी आपको देखता है, ଆଉ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି वो दिन के समय भी आपको देखता ସେ है। ଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା उनको देखने वाला एक प्रभु, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସେ ପ୍ରଭୁ उसने क्या देखा है? ସେ କଣ ଦେଖିଲେ मेरे चेले स्ट्रगल कर रहे हैं, ଆଉ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି वो नौका में उसको डोंगा में आगे बढ़ना चाह रहे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି यीशु मसीह आपकी इच्छाओं को जानता है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣନ୍ତି वो आपके स्ट्रगल्स को जानता है। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଜାଣନ୍ତି हालेलुया। और बाइबल बताती है, ଆହୁରି ବାଇବଲ କହେ लिखा है 48 आयत में, वो चलकर चौथे वाच में, चौथे पहर में वो चलकर उनके पास आ गया है। ଆଉ 40 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई मेरी बहन, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ आपकी समस्या को देखकर स्वर्ग में बैठकर देखने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन आज रात के इस यीशु मसीह का मैं प्रचार कर रहा हूँ। वो यीशु मसीह आपकी समस्या को देखकर वहाँ पर सिर्फ स्वर्ग में नहीं बैठेगा, वो आपके पास आएगा, आपके समस्या के बीच में आपके साथ खड़ा होकर आपकी समस्या से आपको बाहर निकालेगा। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସି ରହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ଗମନ କରିବେ बाइबल बताती है ବାଇବଲ କହେ वो उनके पास आ गया है, ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ वो आपके पास आ सकता है, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ वो आपके ଆସିପାରନ୍ତି पास आएगा, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବେ आपकी बीमारी में आपके पास आएगा, ରୋଗ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବେ आपकी निराशा में आपके पास आएगा। ନିରାଶ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବେ शायद कोई और ना आए, ହୋଇପାରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ शायद कोई रिश्तेदार ना आए, ହୋଇପାରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆସିବେ शायद कोई ନାହିଁ मित्र ना आए, ହୋଇପାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ନାହିଁ शायद कोई गांव वाला ना आए, ହୋଇପାରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିବେ ନାହିଁ लेकिन ये यीशु आपके पास आएगा, କିନ୍ତୁ ୟେଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ और वो आपसे प्रेम ଆଉ करता ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ है। ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ Oh, ନିକଟକୁ Jesus, ଆସିବେ hallelujah. ହାଲେଲୁୟା बाइबल बताती है ବାଇବଲ କହେ वो उनके पास आया है, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ वो आपके पास आएगा। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିବେ बाइबल बताती है, ବାଇବଲ କହେ उसके 49 आयत में लिखा है, ଆଉ 49 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି जैसे उन्होंने देखा है। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ सुनिए, ଶୁଣନ୍ତୁ यीशु कब आया है? ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି उन्होंने यात्रा कब शुरू की थी? ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ लिखा शाम के समय में। ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ लेकिन अब कौन सा टाइम हो गया है? କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି चौथा पहर बोलेंगे तो सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର କହିଲେ ପାହାନ୍ତିଆ 3ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ यहूदियों के समय के अनुसार 3-3 घंटे का एक पहर है। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରିବାଜ ଅନୁସାରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରହର ଥିଲା वो सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय है। ଆଉ ସେଇଟା ପାହାନ୍ତିଆ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରର କଥା हम ये सवाल पूछ सकते हैं, ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା प्रभु आप आए तो सही, आप थोड़ा समय पहले आ जाते तो थोड़ा सा स्ट्रगल कम करना पड़ता। ଆଉ ହୋଇପାରେ ଆମମାନେ ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲ ଆପଣ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଟିକେ କମି ଯାଇଥାନ୍ତା प्रभु आप 12 बजे क्यों नहीं आए? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ प्रभु जी आप तीसरे पैर में क्यों नहीं आए? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ प्रभु जी आप दूसरे पैर में क्यों नहीं आए? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ प्रभु जी आप तीसरे पैर में क्यों नहीं आए? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ प्रभु आप चौथे पैर तक क्यों इंतजार करते रहे? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ध्यान से सुनिएगा, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ हर समस्या का एक अंत है। बाइबल बताती है रात में बेशक रोना पड़े लेकिन एक सुबह भोर को आनंद का समय आता है। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ କି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାପ୍ତ ଅଛି ଆଉ ବାଇବଲ ଯେମିତି କହେ କି ହୁଏତ ରାତ୍ରିରେ
ଆସିବେ वहाँ पर 3 लोग उसके घर में आते हैं। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି बात करता है। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି बाइबल बताती है जब सारा ने सुना वो हंसने लगी। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସାରା ଶୁଣି ସେ ହାସ୍ୟରେ ଉଡାଇଲା वो क्यों हंस रही थी? କାହିଁକି ସେ ହସୁଥିଲା उसने बोला मेरा गर्व का, उसने वहाँ पर बाइबल में इस प्रकार लिखा है, ଆଉ ବାଇବଲରେ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି बोला मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है। ଆଉ ଲେଖା ସେ କହିଲା କି ମୋର ଯୋଉ ମାସିକ ଧର୍ମ ତାହା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି इसका मतलब अभी बच्चे को पैदा करने की कोई स्थिति नहीं है। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ इसका मतलब उसका गर्भ पात्र पूरी तरह डेड हो गया है। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ତାର ସେଇ ଗର୍ଭସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି लेकिन बाइबल बताती है କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ सारा उस समय 90 वर्ष की थी, ସାରା ସେତେବେଳେ 90 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ अब्राहम 99 साल का था। ଆଉ ଅବ୍ରାହାମ 99 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ वही गर्भ जिसके बारे में सारा ने बोला मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है, ଆଉ ଯେଉଁ ତାର ଗର୍ଭ ବିଷୟରେ ସାରା କହୁଥିଲେ କି ମୋର ମାସିକ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି उसने सोचा शायद मुझे बच्चा जन्ने का कभी आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। ଆଉ ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ହୁଏତ ଆଉ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ पुत्र संतान प्राप्त हेबार आनंद आसीबो नाही आप 18वें अध्याय का 16 से लेकर पढ़ लीजिएगा। जदि आपण माने 18 अध्याय रो 16 पदरु आरंभ करिवे पढिबाकू वहाँ पर लिखा है से जगह लिखा है परमेश्वर ने कहा अगले साल तेरे लिए एक आशीष आ रही है, आउ परमेश्वर कहिले आसंता वर्ष को तुम पाई गोटे आशीर्वाद रो वर्ष हेबो तेरा सीजन बदलने जा रहा, आउ तुमरो सही परिस्थिति समय बदलिबाकू जाउछि तेरी कोख मरी हुई है लेकिन उसमें परमेश्वर जीवन डालने जा रहा। आउ तुमरो गर्भ हुए तो मृत्यु साजिछि किंतु प्रभु सेठी जीवन देबा पाई जाउछंती। सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, सुनतु मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने कई बार प्रभु आपके समय पे जवाब नहीं देगा, होई पारे अनेक थर प्रभु आमानकर समय आमानक उत्तर देबे नाही, कई बार प्रभु आपके समय पे प्रार्थना नहीं सुनेगा, होई पारे अनेक थर प्रभु आमानकर समय आमानकर प्रार्थना सुनिबे नाही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। किंतु तार अर्थ नाही जे प्रभु आमानकर प्रार्थना सुनिबे नाही। आपके लिए एक समय रखा है, आमानक पाई से गोटे समय रखिछंती, आपके लिए प्रभु ने एक समय रखा है, आमानकर पाई गोटे समय प्रभु रखिछंती। उस समय का इंतजार करे, सेई समय रे अपेक्षा करिबा आपके लिए प्रभु करेगा, आमानक पाई प्रभु करिबे, आपकी आंधियों को प्रभु शांत करेगा, आमानकर जीवन रे आसुतबा आंधी को से शांत करिबे, आपके घर की अवस्था को प्रभु बदलेगा, आमानकर घर परिस्थिति को से बदलाइबे, आपके बच्चों को प्रभु आशीष देगा, आमानकर पुत्र संतान मान को से आशीर्वाद करिबे, आपको प्रभु आगे बढ़ाएगा, आमानको प्रभु आगु को बढ़ाइबे, लेकिन आप उसके समय का इंतजार करें, किंतु आमानको ताकर समय को अपेक्षा करिबाकू पड़िबो, उसके समय का आप इंतजार करें। ताकर समय रे अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। बाइबल बताती है बाइबल कहे वो डर गए हैं, से माने भीत होई गले भय कले, उन्होंने लगा कि शायद कोई गोष्ट है, आ से माने भाबिले कि एटा किछि भूत आसिला बोली, लेकिन बाइबल बताती है किंतु बाइबल कहे प्रभु उनसे बात करने लगा, प्रभु से मान को कथा हेबाकू लागिले, प्रभु उनसे बात करने लगा, प्रभु से मान को कथा हेबाकू लागिले, आंधियों के बीच में आपसे प्रभु बात करेगा, आउ आंधी तूफान समय रे मध्य प्रभु आमान को कथा कहिबे, आंधी अभी भी शांत नहीं हुई है, आउ आंधी एबे सुधा शांत होई नाई, लेकिन प्रभु की आवाज को उन्होंने सुना, किंतु प्रभु कर रोग को से माने सुनुछंती, आपकी बीमारी के बीच में वो आपसे बात करेगा, आमान कर रोग रो समस्या समय रे प्रभु आमान को कथा कहिबे, हमारे कान उसकी ओर लगे रहना आमान को चाहिए। कर्ण तांको आड़ को लागि रहिबा दरकार। कई बार जब बीमारी आती है, अनेक थर जेते बेले आमान को शरीर रोग आसे, कई बार जब समस्या आती है, अनेक थर आमान को जीवन समस्या आसे, प्रभु की आवाज सुन नहीं पाते हैं, आउ से समय आमे प्रभु को रोग को सुनी पारि न थाओ, लेकिन उन्होंने आवाज को सुना, किंतु ये माने प्रभु को रोग को सुनुछंती, प्रभु ने उनसे बातें की, प्रभु से मान को कथा हेउछंती, और बाइबल बताती है आउ बाइबल कहूची उन्होंने क्या आवाज सुना, से माने कोन रोग सुनिले, उन्होंने कहा प्रभु ने कहा आउ से माने देखुछंती जे प्रभु से मान को कहिले, हिम्मत रखो डरो मत मैं हूँ, आउ से मान को कहिले भय करो नाही साहस धरो एहा मोटे, यीशु ने कहा यीशु कहिले डरो मत भय करो नाही मैं हूँ। ए तो मु आज रात आपसे भी प्रभु कहता है आज रात्र रे प्रभु आपण मान को मध्य कहउछंती, अगर आप डरे हुए हैं, जदि आपण माने भयभीत होइछंती, आपके परिस्थितियों के कारण डरे हुए, आपण मानकर परिस्थिति जोगु आपण माने भयभीत होइछंती, आपके आने वाले कल के बारे में आप डरे हुए, जदि आपण मानकर आसंता काली विषय रे आपण माने भयभीत होछंती, बच्चों के भविष्य के बारे में आप डरे हुए, आपण मानकर पुओ मानकर भविष्य को नै भयभीत होछंती, सेवकाई के बारे में आप कल को लेकर चिंतित हैं, आसंता काली रो सेवा को
ନେଇ ଯଦି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି आज रात प्रभु आपसे कहता है ଆଜି ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି डरिए मत, ଭୟ କର ନାହିଁ, डरिए मत, ଭୟ କର ନାହିଁ, भयभीत मत होइए। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। यीशु आपके साथ है, ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, यीशु आपके साथ है। ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା। यीशु आपके साथ है, ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, यीशु मेरे साथ है। ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ସେ नहीं। କହିଲେ ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। वो आपके साथ रहेगा। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसके 51 आयत में लिखा है, ଆଉ 51 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। उसके 51 आयत को थोड़ा पढ़ दीजिए। 51 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, हालेलुया। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହଁ। ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो धीरे धीरे उसको पढ़िएगा। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ହଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ हाँ, सेमाने के निकट जाई, ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ नौका चढ़ीले। ଆଉ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା। हाँ, सुनिए, यीशु मसीह का प्रेजेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଣିବ। यीशु का उपस्थिति आपके जीवन में एक भिन्नता को लेकर आएगा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଆଣିବ। यीशु ने कुछ बोला नहीं, ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। यीशु ने कुछ बोला नहीं, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। लेकिन जैसे ही वो उसके डोंगा में आ गया है, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ सब कुछ शांत हो गया है। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। जब यीशु के प्रेजेंस आपके घर में है, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବ, यीशु की उपस्थिति आपके घर में है, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଛି, यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में है, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି, आपकी आंधियां शांत हो जाएंगी, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଆନ୍ଧି ସବୁ ବନ୍ଦ आपकी ହେଇଯିବ, बीमारियां चंगी हो जाएंगी। ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ओ यीशु का प्रेजेंस, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। the presence of Jesus makes a difference। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଆଣିବ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसके अंदर पतरस है, ଆଉ ସେଇ ନୌକାରେ ପିତର ଅଛି, उसके अंदर यूहन्ना है, ସେ ଭିତରେ ଜହନ ଅଛି, लेकिन आंधी कम नहीं हुई। କିନ୍ତୁ ସେ ଆନ୍ଧି ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। लेकिन यीशु अंदर आने से आंधी बंद हो गई। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନ୍ଧି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर अद्भुत काम है। ଯେଉଁଠି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଚମତ୍କାର ହେବ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास करते हैं रात यीशु मसीह यहाँ पर है? ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି? आज यीशु यहाँ पर है। ଆଜି ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। मेरी समस्या दूर होने वाली है, ମୋର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, मेरी बीमारी दूर होने वाली ମୋର है, ରୋଗ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, मेरे जिंदगी में आशीष आने वाली है। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବାକୁ Oh, ଯାଉଛି। the presence of Jesus makes it different। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। यीशु का बोट में आना, it all makes a difference। ଆଉ ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିବା, ସେ ନୌକାରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଉଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप पढ़ने के समय କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପଢିବେ, यीशु मसीह अपने आप आपके डोंगा में नहीं आएगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। अपने आप जबरदस्ती यीशु मसीह आपके डोंगा में नहीं आएगा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। अपने आप आके वो आपके डोंगा में बैठेगा नहीं। ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଆଡୁ ଆସିକି ନୌକାରେ ବସିବେ ନାହିଁ। वो ऐसा नहीं है जबरदस्ती आपके घर में आए। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯୀଶୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ପଶିଯିବେ। एक आयत पढ़ेंगे, ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, 6वां अध्याय, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ उसके 21 आयत को धीरे धीरे पढ़ देना। ଆଉ 21 ପଦକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 21 आयत। ଜହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦ। हाँ, ତେଣୁ ସେମାନେ हाँ, ତାହାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ, हाँ, से माने, ତାହାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ନେବାକୁ हाँ, ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। हाँ, सुनिए, जब तक आप उसको बुलाएंगे नहीं वो आपके नाम में नहीं आएगा। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। आगे लिखा है, ଆଗରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, हाँ, ପୁଣି ସେମାନେ हाँ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ हाँ, ନୌକାଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। वहाँ पर दो चीजें हुआ है, ଆଉ ସେଠି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଘଟିଅଛି। दो चीजें हुआ है। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଘଟିଅଛି। नंबर 1, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, उन्होंने यीशु को ढोंगा में बुला लिया, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। उन्होंने यीशु को अंदर बुलाया ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନୌକା ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। और बाइबल बताती है ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ, यीशु ढोंगा में आने के बाद ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଯିବା ପରେ वो मंजिल में पहुंच गए, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। वो मंजिल में पहुंच गए, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି वो ଗଲେ। मंजिल में पहुंच गए, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। मंजिल में पहुंच गए, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। मंजिल में पहुंच गए हैं। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। Not because of ढोंगा but because of Jesus. ଆଉ ନୌକାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, Hallelujah. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आपके आज नाम में यीशु है, ଆପଣମାନଙ୍କର ନୌକାର ଜୀବନରେ ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁ आपने ଅଛନ୍ତି? यीशु को अपने जीवन में बुलाया है। କଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାରେ ପ୍ରଭୁକୁ अगर ଡାକିଛନ୍ତି? यीशु आपके साथ है, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, आप अपने लक्ष्य में पहुंचेंगे, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। आप अपनी डेस्टिनी में पहुंचेंगे। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। आंधी आपको रोक नहीं सकती है, ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। और तूफान आपको रोक नहीं सकते हैं, ତୁଫାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। बीमारी आपको रोक नहीं सकती ରୋଗ है, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। सताव आपको रोक नहीं सकता ଧାରଣା है, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। क्योंकि उसकी आंखें आपके ऊपर है। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ वो ଅଛି। आपके पास आएगा, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। वो आपको मंजिल में पहुंचाएगा, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। वो मंजिल में आपको लेकर ସେ जाएगा। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ये कोई भी समस्या आपको खत्म नहीं कर पाएगी। ଆଉ ଏ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। बाइबल बताती है ବାଇବେଲ କହେ, वो वही चेले हैं ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ जो कुछ समय पहले स्ट्रगल कर रहे थे, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ, यीशु आने के बाद ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज रात कितने लोग चाहते हैं, ଆଜି ରାତ୍ରରେ କେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? प्रभु जी मैं चाहता हूँ मेरी डेस्टिनी में पहुंचना चाहता ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। हूँ, प्रभु जी मैं उस बुलाहट को पूरा करना चाहता हूँ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। प्रभु तेरे उद्देश्य को मैं पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପୁରା ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। प्रभु जहाँ तू मुझे लेकर जाना चाहता वहाँ मैं पहुंचना चाहता हूँ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। अगर यीशु आपके साथ है, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛି, वो आपको पहुंचाएगा, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। वो आपको पहुंचाएगा। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। आपका धन आपको नहीं पहुंचाएगा, ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। आपका स्वास्थ्य आपको नहीं पहुंचाएगा, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। लेकिन यीशु आपको पहुंचाएगा। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। और यीशु आपको पहुंचाएगा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବେ। Jesus will help you। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। आज रात कितने लोग चाहते हैं, ଆଜି ରାତ୍ର କେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି मुझे यीशु की मदद चाहिए, ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। मेरे परिवार को यीशु की मदद ମୋ चाहिए, ପରିବାରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। वो मुझे यीशु की मदद चाहिए। ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। आज रात वो आपको बुला रहा है, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। वो आपकी मदद करना चाहता है, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ वो ଚାହୁଁଛନ୍ତି। आपकी सहायता करना चाहता ସେ है, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। वो आपके डोंगा में आना चाहता ସେ है, ଆପଣମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। वो आपके घर में आना चाहता ସେ है। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। आपकी आंधियां शांत हो जाएंगी, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଆନ୍ଧି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। Jesus will take you to the destiny। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। आइए सब खड़े हो जाए। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। आज कितने लोग कहेंगे ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆପଣମାନେ କହିବେ मुझे यीशु की जरूरत है, ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। मुझे यीशु की जरूरत है, ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। मेरे साथ मुझे यीशु चाहिए। ମୋ ସହିତ ମୋତେ ଯୀଶୁ ଦରକାର। वो उसका डोंगा कितना अच्छा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ଆଉ ତାଙ୍କର ନୌକା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। लेकिन what makes a difference is the presence of Jesus। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନତା ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। यीशु मसीह का प्रेजेंस आपके जीवन में एक भिन्नता को लेकर आएगा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଆଣିବ। आप आपकी यात्रा को समाप्त कर पाएंगे। ଆଉ ଆମମାନେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବା। कई बार आपको लगेगा ଅନେକ ଥର ଆମକୁ ଲାଗିବ मेरी बीमारी के साथ कैसे होगा, ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ତ ରୋଗରେ ଅଛି, मेरे सामने परेशानियां हैं कैसे होगा, ଆଉ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେମିତି ହେବ। मैं मेरे दर्शन को पूरा होते हुए Jesus Christ। पुनर्बार ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି।
Really, it is a great honor for me to stand in front of you to share His love. ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। I'm really very much happy in my heart while you are doing worship, nicely dancing, and also all of you are joining with them and singing. Even though I'm not understanding the language what you are singing, but I can feel the presence of God while you are worshiping. ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାଚି ନାଚି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଯଦ୍ୟପି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲି। I give thanks to God about that wonderful choir and also our worship leader brother Rajesh and also the beautiful musicians. They did a great job. Could you please give a big hand to them? ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୀତରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବା ଭାଇ ରାଜେଶକୁ ପୁଣି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। Okay, please come with me to the book of 1 Thessalonians. ଆଉ ଦୟାକରି ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ମୋ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ପୁସ୍ତକ Chapter 1, ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ verse 1 to 10. We are going to meditate tonight. ଏକ ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପଠନ କରିବା। I'm repeating once again. ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି Book of 1 Thessalonians, chapter 1, verse 1 to 10. ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଏକ ପଦରୁ 10 ପଦ ଯାଏ। First, I would like to read in English. Later, Pastor Amrisha will read for you in your language. ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଢୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବେ। Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit, and with full conviction. You know what kind of men we proved to be among you for your sake, and you became imitators of us and of the Lord. For you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not to say anything, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପଦରୁ 10 ପଦ ଯାଏ। ପାଉଲ, ସିଲପାନ ଓ ତିମୋଥି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ, ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। କାରଣ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତାହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଥିଲ। ଏପରିକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାକିଦୋନିଆ ଓ ଆଖାୟା ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦୋନିଆ ଓ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ,